वॉइस तो बराबर है इसरार। आई आई डोंट थिंक कि कोई वॉइस का इश्यू आ रहा हो। मेरा नेटवर्क काफी अच्छा चल रहा है, बट नेटवर्क इश्यूज आ सकते हैं, डिस्टरबेंस आ सकता है, ठीक है। नॉट इवन फ्रॉम माय साइड, फ्रॉम योर साइड आल्सो हो सकता है। ओके ओके, चलो ठीक है, कोई बात नहीं, थोड़ा फ्लक्चुएट हो सकता है। So we had a discussion about the cellular system also, that your city is divided into a number of section, number of region, and those regions are called as cell. Usually that the shape of that particular cell is a hexagon, so that it can cover maximum number of users. Okay, and it is having some advantages also, having the base station in a cell. Okay, मैंने आप लोग को डायग्राम से बताया था कि एक सेल के अंदर एक बेस स्टेशन होता है, एंड दैट बेस स्टेशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसमिटिंग एंड रिसीविंग योर कॉल. ओके, and it has a very high power. Okay, so it will do the transmission and receiving task for you. Okay, because if the user ka mobile, if the user ka device is going to perform all these transaction like ट्रांसमिशन एंड रिसीविंग, अगर कभी आपका मोबाइल डिवाइस करने लगा तो इसको बहुत ज्यादा पावर रिक्वायर्ड है. तो आपके पास जितनी 5000 4000 6000 mAh की जो बैटरी है, इट इज नॉट सफिशिएंट. ओके, सो सो दिस इज द रीजन आर बेस स्टेशन, जिसको मैंने टावर से बताया था आप लोग को. सो दैट बेस स्टेशन इज वेरी वेरी यूजफुल इन द सेल्युलर सिस्टम. ओके, and cause of this 3 cell and 7 cell cluster, it is possible for us to have different frequencies in all the cell. Okay, so f1 f2 f3 will not clash with others. Okay, in the same way we are having 7 cell cluster, 7 cell grouping, in which the different 7 frequencies were used. Okay, to avoid the interference. Okay, to avoid the and to reduce the interference even more, we can sectorize the section, we can sectorize the cell. Okay, अभी even एक cell की हम लोग बात कर रहे थे, in this particular cell, even that particular cell is divided into 3 different region. Okay, so that the region can be divided and the service will be provided more efficiently. Okay, the purpose of all these arrangement is that only कि भाई हमारे user को अच्छे से service मिले. ओके, और इंटरफेरेंस कम हो, जितना इंटरफेरेंस कम होगा उतनी कॉल क्वालिटी एंड द कम्युनिकेशन विल बी मोर एफिशिएंट. ओके, so this is why all this arrangement is being done. Okay, this one new concept, that is cell breathing. Okay, cell breathing is a concept in which it is depend on the current load. Okay, as I told you that case, sometimes it may happen that in a particular region number of users are reduced and number of users are getting increased. Okay, तो ऐसा होता है सिचुएशन में. फॉर एग्जांपल वी हैव वन सिचुएशन, मैं आपको एक छोटा सा डायग्राम से आपको मैं बताने की कोशिश करता हूँ. सो से इन वन ऑफ द रीजन, for example this is the region. Okay, and this is the region, again one side region. Okay, number of users for example यहाँ पर थे हमारे पास में 100. Okay, and यहाँ पर थे आपके पास में 50. Okay, एक टाइम ऐसा आया, अच्छा ये जो एरिया है ये 50 के हिसाब से, एंड दिस पर्टिकुलर एरिया इज अकॉर्डिंग टू द 100 नंबर ऑफ यूजर्स. ओके, दिस इज वेरी स्मॉल, आई एम जस्ट टेकिंग वन एग्जांपल. इट इज नॉट लाइक दैट कि 100 यूजर होना चाहिए, 1000 यूजर होना चाहिए, नॉट लाइक दैट. नंबर ऑफ यूजर होते हैं, बहुत सारे यूजर होते हैं एक एक रीजन में. Okay, so this is I'm just taking for the example. So if maybe number of number of users have shifted to any other, number of users are shifted to any other cell, like यहाँ के 50 users चलेगा इस सेल के अंदर, यहाँ के 50 plus 50 कितना हो गया, 100, टोटल 100 हो गया. Okay, तो ये वाला जो रीजन था, ये वाला this particular region was quite small. This particular region was quite small to handle 100 number of user. Okay, पहले 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 कितने थे 50, तो 50 was enough, लेकिन अब कितने हो गए, 100 हो गए. तो इसके अंदर ये माना जाता है कि आपका जो है सेल ऑटोमेटिकली क्या करेगा, ब्रीथ करेगा, सो दैट इट कैन ऑक्यूपाई, या फिर आपके मतलब के मैक्सिमम यूजर्स को, मतलब जैसे द कॉन्सेप्ट इज दैट के व्हेन इट विल फाइंड. अच्छा, सेल ब्रीथिंग यहाँ पर होगा बेसिकली, देखो सेल ब्रीथिंग आपका यहाँ पर होगा कि कैसे होगा, व्हेन यूर सेल फाइंड, when your tower and when your base station find that number of users are very less in a particular region, in my region, then it will breathe. Okay, it will cover more number of users. Okay, जैसे फॉर एग्जांपल देखो यहाँ से 100 थे, 100 में से कितने हो गए, 50 चले गए. फॉर एग्जांपल 50 है यहाँ पर,
तो 50 हो गए, तो अब ये 50 को तो आराम से हैंडल कर सकता है, नॉट अ बिग डील फॉर 50 यूजर्स। ओके, तो व्हाट इट विल डू, इट विल ब्रीथ एंड इट कैन कवर मोर डिस्टेंस ऑल्सो। तो थोड़ा ब्रीथ होके क्या हो जाएगा, अपना जो रीजन थोड़ा सा इंक्रीज कर लेगा, दैट इज कॉल्ड सेल ब्रीथिंग। ओके, तो सेल ब्रीथ करने पर बेसिकली क्या होगा, इट कैन कवर मोर नंबर ऑफ यूजर। यू कैन सी इन द डायग्राम, आपका जो बेसिक जो आपका जो था एरिया, वो ये वाला एरिया था। ओके, जिसके अंदर 1, 2 एंड 3 तीन यूजर थे हमारे, बट यहाँ पे 3 थे तो कम थे, तो उसको लगा कि और भी मैं यूजर्स को हैंडल कर सकता हूँ। तो ये एक और आपका मतलब उसने क्या किया, अपनी मतलब जिसको हम लोग बोलेंगे इंटेंसिटी, अपना एरिया को लार्ज किया। तो लार्ज करने के बाद में ये एरिया को भी वो कवर कर सकता है, ये सॉरी ये सेल, ये मोबाइल को भी कवर कर सकता है, ये डिवाइस को भी कवर कर सकता है। ठीक है, अगर कभी अगर कभी इस पर्टिकुलर एरिया में फॉर एग्जांपल एक यहाँ पर सेल आ गया, एक सेल यहाँ पर आ गया, ठीक है, तो जैसी सेल यहाँ पर, बिकॉज सॉरी सेल बोल रहा हूँ मैं, आपके डिवाइसेस। ओके, because your device can travel all over the world, so they can move in any region, they can move from any region to any region। okay, from any cell to any cell, from one cell to another cell, कहीं पर भी जा सकते हैं। तो वो 2 सेल आपके यहाँ पर आ गए या कोई और 2 सेल यहाँ पर आ गए, तो क्या करेगा, ऑटोमेटिकली अपना ये जो एरिया है वो क्या कर लेगा, श्रिंक कर लेगा। ठीक है, तो वन इज अ सेल श्रिंकिंग एंड वन इज सेल ब्रीथिंग। ओके, तो श्रिंकिंग में बेसिकली अपना एरिया को थोड़ा सा स्मॉल कर लेते हैं, ताकि ये जो यूजर यहाँ पर आए हैं 1, 2, 3 एंड दिस इज 4 एंड दिस इज 5, तो 5 सेल हो गए, तो उसने अपने अपने एरिया को क्या कर लिया, थोड़ा सा वो कर लिया, श्रिंक कर लिया। ठीक है, तो सेल ब्रीथिंग एंड सेल श्रिंकिंग इज डिपेंड ऑन, जो भी हो, whatever it is, maybe a cell shrinking or maybe cell breathing, it is depend on the number of users who are present in the cell। ठीक है, अगर नंबर ऑफ यूजर ज्यादा होंगे तो वो अपना एरिया को क्या कर लेगा, श्रिंक कर लेगा। अगर नंबर ऑफ यूजर कम होंगे तो क्या करेगा, ब्रीथ करके अपने एरिया को बड़ा कर लेगा, एंड इट विल ट्राई टू प्रोवाइड द सर्विस टू द मोर नंबर ऑफ पीपल्स। okay, so cell breathing and cell shrinking is depend on the number of users present in the cell। okay, so this is just an example for you people. I hope you people are understanding, okay, what is cell breathing and what is cell shrinking। okay, one of the viva question, most common viva question asked in examination। okay, so basically cell breathing and cell shrinkings are depend on the number of users present in the cell। okay, when the number of users are reduced, so it the cell breathe, okay, and it covers maximum users and try to provide the services to those users। when the number of users are increased in the cell, so it will shrink itself, it will try to focus on the users who are present in the cell। ठीक है भाई, बाहर के लोगों को सर्विस, ये वाले यूजर को और ये वाले यूजर को सर्विस प्रोवाइड करने के बजाय अच्छा है कि जो अपने अंदर जो बाहर से आए हैं थोड़ा श्रिंक होके उनको सर्विस अच्छे से प्रोवाइड की जाए। ओके, सो दैट इज द कॉन्सेप्ट, सेल ब्रीथिंग एंड सेल श्रिंकिंग। The cell size depends on the current load, as I told you that number of user, current load, accordingly CDM cells are, cellular आपके जो systems होते हैं उसके जो cells are commonly said to breathe। okay, because if there are, basically it is depend on the current load, if the load is reduced then it will breathe according to the load, and while a cell can cover larger area under light load, it shrink if the load increases, that I told you। ठीक है, लोड बढ़ेगा तो वो श्रिंक करेगा, लोड कम होगा तो वो क्या करेगा, ब्रीथ करेगा। द रीजन फॉर दिस इज द ग्रोइंग नॉइज लेवल इफ मोर यूजर्स आर इन अ सेल। अच्छा, अगर वो क्या करेगा, अगर नंबर ऑफ यूजर आते गए और वो ब्रीथ ही करेगा, सेल ब्रीथ करते जाएगा, तो बेसिकली क्या हो सकता है, क्लैशेस हो सकते हैं, नॉइज लेवल बढ़ेगा, नॉइज लेवल बढ़ेगा तो कॉल क्वालिटी पे इफेक्ट आएगा, कम्युनिकेशन प्रॉपर नहीं होगा, एंड दीज इश्यूज विल कम। ये बोलते हैं ना, एक इशू दूसरे इशू को जन्म देता है ना, bugs follow bugs। okay, in the same way one bug and one problem will generate another problem, so we have to avoid a single issue so that not other issues will generate it। okay, so आगे जाने के बजाय हम लोग चलो आगे आगे बढ़ते हैं, because we have understood, I hope that you have understood what is the concept of cell breathing and cell shrinking।
सेल श्रिंकिंग मैंने टॉपिक लिखा नहीं हूँ, बट दिस इज द टॉपिक, सेल ब्रीथिंग एंड सेल श्रिंकिंग. नॉट अ specific topic is mentioned in the book, but this is the small concept but important concept. I hope you have understood what is cell breathing and cell shrinking. Someone respond. If people are understanding or not, please let me know so that we can proceed. We can go ahead with the next topic. Okay. कल एक को समझा लगता. हाँ. Okay. So now we are coming to the next topic. We are coming to the next topic, that is about the frequency spectrum. Okay. As I told you that 2G scam, that the spectrum is a natural resource. Okay. And in this particular spectrum we are having, number of frequencies. Okay. Having different ranges. Okay. As you can see, we are having I will show you. We are having very low frequency, we are having low frequency, we are having मीडियम फ्रिक्वेंसी, हाई फ्रिक्वेंसी, वेरी हाई फ्रिक्वेंसी, अल्ट्रा हाई फ्रिक्वेंसी, सुपर हाई फ्रिक्वेंसी, और ये आपका है, ये भी कुछ है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक हाई फ्रिक्वेंसी, ऐसा कुछ है, देन इंफ्रारेड, देन विजिबल लाइट, देन अल्ट्रावायलेट. So all these waves and other these frequencies are working side by side in the different range with the different frequency पे वो काम कर रही है. एंड ये पूरे का जो कॉम्बिनेशन, इसको हम लोग बोलते हैं फ्रिक्वेंसी स्पेक्ट्रम. ओके. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. So frequencies for radio transmission, basically it can take place using many different frequencies band. As you can see, यहाँ पर हमारे पास में बहुत सारी frequency bands हैं. ठीक है. One for very low frequency, one for low frequency, one for medium MF, HF, VHF, UHF and all that. ठीक है. So these are the bands. Each frequency band exhibit certain advantages and disadvantages. Like that के very low frequencies will be having some sort of advantage, but low frequency उसका advantage नहीं बल्कि उसका disadvantage रहेगा. So maybe each and every band is having some advantages and some are having some disadvantages too. This diagram gives a rough overview of the frequency spectrum that can be used for the data transmission, because this is for the data transmission only, and you can use any kind of any other band. अलग अलग devices अलग अलग band use करते हैं in order to communicate or in order to send their data to the destination machine. This figure shows frequency starting at 300 hertz and going up to over 300 terahertz. Okay. तो चलो स्टार्ट करते हैं यहाँ से हम लोग. अब यहाँ पे कुछ नहीं, जस्ट खाली थियोरी है, आपको खाली याद रखना है. इसमें खाली आपके याद रखने का कमाल है. ठीक है. यू नीड टू रिमेम्बर दैट वेरी लो फ्रिक्वेंसीज रेंजेस फ्रॉम विच बैंड टू विच बैंड, लो फ्रिक्वेंसीज रेंजेस फ्रॉम विच बैंड टू विच बैंड. ठीक है. तो आपको खाली इतना याद रखना है. ठीक है. एग्जाम में कभी कभार इसके बारे एक आध क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि हाई फ्रिक्वेंसी की रेंज क्या है, वेरी लो फ्रिक्वेंसी की रेंज क्या है. सो दैट इज द one or two questions are expected from this particular frequency band. Coming to the actual thing, what I just want to show you. चलो ये आपके काम की, यहाँ से स्टार्ट करते हैं. So basically radio transmission start at several kilohertz, the very low frequency VLF range, and these are very long waves. इसकी कुछ characteristics है. Very low frequency, which is starting from this point. Very low frequency, which is starting from लो फ्रिक्वेंसी रेंज विच इज यूज्ड बाय द सबमरीन. जैसे कुछ एप्लीकेशंस भी मैं इसके अंदर मैंने मेंशन किया हूँ कि दीज रेंजेस आर यूज्ड फॉर व्हाट पर्पसेस. ओके. तो जब इनकी लो फ्रिक्वेंसी है तो दे आर यूज्ड बाय सबमरीन बिकॉज दे कैन पेनिट्रेट वाटर एंड कैन फॉलो द अर्थ सरफेस. बोलते हैं ना द कर्वेचर ऑफ द प्लैनेट. ओके. तो वैसे ये अर्थ सरफेस को क्या कर सकते हैं, लोग फॉलो कर सकते हैं और वाटर को पेनिट्रेट करके इसमें से जा सकते हैं. सो दे आर यूजुअली यूज्ड बाय द सबमरीन्स. ओके. वेरी लो फ्रीक्वेंसी रेंज, मतलब लो फ्रीक्वेंसीज वाली. द मीडियम फ्रीक्वेंसी MF एंड द हाई फ्रीक्वेंसी HF रेंजेस आर टिपिकल फॉर transmission of hundreds of radio station either as a amplitude modulation and FM.
जहाँ पर आपके एफएम आप लोग सुनते हो, वो सारे आपके एफएम्स वगैरह ये मीडियम और हाई फ्रिक्वेंसी के ऊपर चलते हैं, ठीक है। तो मीडियम फ्रीक्वेंसी रेंज और हाई फ्रीक्वेंसी रेंज दे आर टिपिकली फॉर द ट्रांसमिशन ऑफ द रेडियो स्टेशंस, लाइक वी आर हैविंग 93.5, ओके, 104 एंड ऑल दैट, जो भी हम लोग सुनते हैं, ठीक है। तो आपके जो रेडियो स्टेशंस है वो मीडियम फ्रीक्वेंसी और हाई फ्रीक्वेंसी पर होते हैं। लो फ्रीक्वेंसी के ऊपर सबमरीन वगैरह वाले यूज कर सकते हैं, सो दैट दे कैन पेनिट्रेट द वाटर आल्सो, एंड दे फॉलो द अर्थ सरफेस आल्सो, ठीक है। तो लो फ्रीक्वेंसीज वहां पर यूज होती है, वेरी लो फ्रीक्वेंसीज भी आपकी रेंजेस। Short waves are typically used for radio transmission around the world, enabled by reflection at the ionosphere. Transmit power इनका इतना होता है 500 किलोवाट का होता है, विच इज क्वाइट हाई कंपेयर टू द 1 वाट ऑफ द मोबाइल फोन। आपके मोबाइल फोन का जो ट्रांसमिशन पावर होता है इट इज ओनली 1 वाट, ओके। और अगर ट्रांसमिशन पावर अगर आपको बेस स्टेशन से मिले विच इज अराउंड 500 किलोवाट, तो क्या कहने फिर आपके, ठीक है। आपका आपका जो सिग्नल है वो एकदम रॉकेट की तरह आपके डेस्टिनेशन के पास में जाएंगे। और अगर वही काम अगर आप करते बैठेंगे तो आपका मोबाइल तो पहले उसको ट्रांसमिट ही नहीं कर पाएगा, बिकॉज इट इज नॉट हैविंग दैट मच पावर, दैट मच अमाउंट ऑफ पावर टू सेंड यूर सिग्नल टू यहाँ से लेकर दिल्ली, ठीक है। अब मेरे मोबाइल ने अगर कभी यहाँ से सिग्नल को भेजा भी तो कहाँ तक जाएगा वो, यहाँ से लेकर तो बहुत से बहुत पहुंच गया तो पनवेल तक चला जाएगा, आई मीन खारघर तो पनवेल तक पहुंच जाएगा, इतना खाली पावर है आपके मोबाइल फोन में। बट उसके आगे कौन लेकर जाएगा, ठीक है। So you are having your base station. So these transmission radio transmissions are used in order to transmit your signals from the source to the destination, which is having very high transmit power, as you can see, 500 kilowatt. We move to the higher frequency. The TV stations follow. Conventional analog TV is transmitted in the ranges 124 to 230 megahertz. ये इसकी कुछ ranges है, very high frequency and ultra high frequency की। अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी इज ऑल्सो यूज फॉर मोबाइल फोन्स विद एनालॉग टेक्नोलॉजी, बहुत पहले की टेक्नोलॉजी वो अभी बता रहे हैं हम लोग को, ठीक है। सुपर हाई फ्रीक्वेंसीज SHF आर टिपिकली यूज फॉर डायरेक्टेड माइक्रोवेव लिंक्स, ओके। डायरेक्टेड okay, whenever I say micro directed, it means that it is done using the focused antennas, okay. Directed means ke it is sending to particular direction only, okay. The signals are sent to the particular direction only, okay. These are called directed transmission, okay. So super high frequencies are typically used for directed microwave. Super high तो हर एक का आपने जितना ये बैंड में आपने देखा है, तो all are having some task, they are having particular range, they are having some applications, and उनका कुछ ना कुछ तो यूज है। तो वही जहां जहां मैंने मुझे मिला तो उसको मैंने मेंशन किया। Okay, so some systems are planned in the extremely high frequency EHF, okay, extremely high frequency range, which comes also to which comes close to the infrared, okay. Infrared आपको तो पता है, line of sight transmission, okay. So this basically it is close to the, extremely high frequencies are very close to the infrared, okay. Finally, visible lights has been used for wireless transmission for thousands of years, and while light is not very reliable due to the interference, so अभी न्यू टेक्नोलॉजी है जिसके थ्रू हम लोग ट्रांसमिशन कर सकते हैं। सो इसके बारे में आपको मैंने इसीलिए स्टार्टिंग में बोला कि इसमें आपको जो मेन क्वेश्चन पूछा जा सकता है मे बी इन द वाइवा एग्जामिनेशन, so they will ask के frequency spectrum क्या है। basically it's a natural resource of any any government, or we can say बोल सकते हैं जो भी बॉडी है, अथॉरिटी बॉडी है। so and these particular frequency spectrum has been divided into number of frequencies, okay, number of band, okay, and these bands जो मैं बोल रहा हूँ बस इतना ही काफी है इसके लिए। And these frequency spectrum has been divided into number of bands, and those are VLF, that is very low frequency, low frequency, medium frequency, high frequency, very high frequency, ultra high frequency, super high frequency, extremely high frequency, then comes to infrared, then visible light, then your ultraviolet. So these have been divided in this pattern, okay. Each and have each one is having different range। जैसे आपका वेरी लो फ्रीक्वेंसी स्टार्टिंग फ्रॉम 300 हर्ट्ज टू द 30 किलो हर्ट्ज, देन आपका बाद में फिर आपका लो और मीडियम फ्रीक्वेंसी साथ में रखा है यहाँ पर, तो इसकी जो रेंज है वो अराउंड 30 किलो हर्ट्ज से लेकर 3 मेगा हर्ट्ज तक। तो जो जो मेंशन है वो मैंने यहाँ पे मेंशन किया हूँ। सो इतना या किसी का एक दो का पूछ सकते हैं, बाकी और कुछ नहीं इसमें।
कमिंग टू दी नेक्स्ट टॉपिक दैट इज सिग्नल. ओके, सिग्नल से हम लोग आएंगे यहाँ पर एंटीनास पर, और एंटीनास से हम लोग कुछ एंटीनास के बारे में पढ़ेंगे, और एंड व्हेन विल कंप्लीट दी एंटीनास, आई थिंक यहाँ पर एंटीनास ही होगा. Then we have one more topic that is signal propagation, how the signal is propagated, and कौन कौन सी इसकी ranges होती है. That is, it is having the transmission range, it is having detection range, it is having interference range. तो ये तीन ranges अलग अलग. One viva question, what are the different ranges for the transmission? Okay, तो चलो वापस हम लोग अपने टॉपिक पर आते हैं. Okay. So basically, what are your signals? हम लोग we just talk about the signal that your signal is transmitting from your source to the destination. Your signal is moving from this particular direction to this particular direction. ऐसा जा रहा है वैसा जा रहा है. Signal is having आपके signal clashes होंगे, signal drop होंगे, और signal आपका distort होता है. उसका जो data है वो distort होता है. तो what is basically a signal? तो signals is nothing but a physical representation of data, just a data. Okay. अच्छा, सिग्नल है क्या आपका? बेसिकली है तो डेटा ही है, but the data has to be presented in the form of to the world or on the paper. We have to present it. Okay, in order to present that particular data, we need we need one entity, and that entity is nothing but the signal. Okay, तो डेटा को प्रेजेंट कर रहे हैं हम लोग यूजिंग सिग्नल. Users of a communication system can only exchange data through the transmission of signals only. Okay, अब मैं बोलूँ मेरे पास में डेटा है, ठीक है. What is this data? For example, मेरे कंप्यूटर में डेटा है, ठीक है, and I have one audio file. Okay, any जो भी है कुछ भी, या मेरे पास एक वीडियो फाइल, एक मूवी है. So if I just want to share, I want to transmit that particular file to my friend, okay, who is on the another end. Okay, how I can transfer? I have two options. Okay, I have two options. Either I can put it in the pen drive, okay, or in the hard drive, okay, and then I will give it to him. मैं जाऊँ पर्सनली, जाके मैं यहाँ से 2 किलोमीटर 5-10 किलोमीटर वहां पे जाऊँ और उसको तो बोल दे भाई ये ले मूवी, ठीक है, और वो फिर उसको एक्सेस करे. सो दैट इज द वन ऑप्शन दैट वी आर नॉट डिस्कसिंग. But we have another option that we can communicate or we can transfer it using the network. Okay, because we are in the network domain only, so we can easily transfer that particular video file to my friend via network communication. Okay, अब जब मैं उसे भेजूंगा तो जाएगा कैसे? पेन ड्राइव तो उड़ के जाने वाला नहीं है, पेन ड्राइव अंदर तो उसके जाने वाला नहीं है. योर डेटा, whatever your movie file, that video file was that, okay, that video file has to be converted in the form of signal, and that signal will travel through the network. That signal will travel through the network via from this hop, one hop, two hop, three hop, four hop, five hop, and number of जितने भी hops उसको बीच में मिले, and it will reach to the destination. Your system, sorry, your receiver, your friend will receive that particular video file and will accept it and will download it. Okay, and then you will access it. So basically your signals are used. आपका जो डेटा है which you want to transmit from one end to another end has to travel in the form of signals only. That's on them. Okay. Layer 1 of the ISO OSI basic reference model is responsible for the conversion of data. अब ये आपको तो पूरा चीज मालूम है, because we have gone through the OSI reference model starting from आपका जो है physical layer to the आपका application layer. Physical layer, data link layer, network layer, transport layer, session layer, presentation layer, and application. Please do not throw sausage pizza away, if you remember. So basically your first layer is responsible for the conversion of your data into the form of signal. Okay, यानी कि बिट्स में कन्वर्ट करेगा, फिर वो डेटा आपका आगे जाएगा और आपको रिसीवर को मिलेगा. ठीक है. सो वी ऑल नो दैट सिग्नल पैरामीटर्स आर द एम्पलीट्यूड एंड फ्रीक्वेंसी एंड द फेज शिफ्ट. So these parameter may be used in some of the cases. So ये छोटा सा था सिग्नल के बारे में. मुझे एक्चुअली था टॉपिक मेंशन था, इसके लिए मैंने इसको मेंशन किया. नो व्हाट इज एंटीना. ओके, बेसिकली एंटीनास जो होते हैं, आपको ये भी हम लोग उसके बारे में हम लोग ने पढ़े हैं. वी हैव लर्न टू टाइप्स ऑफ एंटीना. वन इज ओमनी डायरेक्शनल एंटीना एंड द सेकंड वन इज फोकस्ड एंटीना. कौन सा था वो? समवन रिमेंबर द नेम ऑफ दैट एंटीना? एक तो था आपका ओमनी डायरेक्शनल एंटीना विच कैन एमिनेट और विच विल ट्रांसमिट इट्स पावर or its signal in all the direction. That is omnidirectional antenna. The second type of antenna was which sent the signal in only one direction.
याद है किसी को? अरे बोलो, याद है किसी को? अरे बताओ, जल्दी आई थिंक बताओ। सर यूनिडायरेक्शनल था। इट्स अ यूनिडायरेक्शनल। यूनी डायरेक्शनल एंटीनास, ऐसे ही कुछ नाम था उसका। यूनी डायरेक्शनल एंटीनास, मुझे नाम एक्चुअली मुझे भी याद नहीं रहा, मैं इसके लिए आप लोगों को पूछा। So basically, there was a two kind of antenna which will transmit its power in a focused direction, or in a only in one direction, and second was which emanates its power in all the direction. That was omnidirectional antenna. Okay, so basically antenna का काम आपको पता है, ठीक है? Antenna transmit your signal. अच्छा, आपका डेटा कंप्यूटर में था, नाउ इट हैज बीन कन्वर्टेड इनटू द बिट्स। ओके, आपका सिग्नल के फॉर्म में आ गया, बिकॉज द जो ट्रांसमिशन जो होने वाला है आपका सिग्नल्स होने वाले हैं, ठीक है? नाउ योर सिग्नल को जो आपका जो एंटीना है, बिकॉज दिस एंटीना हैज टू बी प्लेस्ड ऑन बोथ द places, like at your sender side also and at your receiver side also, because this is the concept of antenna, sending antenna and the receiving antenna. So your sending antenna and your receiving antenna has to function in at both the places, मतलब दोनों के अलग अलग काम है। your sender antenna will transmit your signal to the destination। okay, your receiving signal, your receiving antenna will receive the signal sent by the sender, it will receive it and then it will give to the machine। फिर मशीन उसको बिट से लेकर कन्वर्ट करेगा, वापस से आपके डेटा में कन्वर्ट करेगा, एंड दैट डेटा विल बी डिस्प्लेड टू यू पीपल। ओके, सो ये एंटीना का काम हम लोग को इतना तो पता है, और ये भी पता है कि दो टाइप के एंटीना होते हैं। तो यहाँ पर और क्या है हम लोग वो देखते हैं। As the name wireless already indicate, this communication involves transmitting signals through space without any guidance। Okay, so here basically we are talking about the unguided medium। ठीक है, अनगाइडेड मीडियम एंटीना, एंटीना जो होते हैं बेसिकली आपके सेंडर और रिसीवर। तो अगर एंटीना है मतलब बीच में कोई वायर अभी फिलहाल नहीं है, ठीक है? मतलब कौन सा मीडिया है? दैट इज अनगाइडेड मीडिया, इन विच वी आर नॉट हैविंग एनी काइंड ऑफ केबल, वी आर नॉट हैविंग एनी काइंड ऑफ मीडियम from sender to the receiver। okay, your sender is going to transmit the signal in air, which act as a medium for that particular signal, and that particular signal will be received by the receiving antenna, will receive it and will give it to the computer, or will be proceed for the further। We do not need any medium that we talk about. Somehow we have to couple the energy from the transmitter to the outside world, and in reverse from the outside world to the receiver। Your sender antenna will try to transmit your signal to the air, air में भेज दिया। अब your receiving signal और your receiving antenna will receive the signal from the air, ठीक है? और आपके डेटा को कैप्चर करेगा। तो दोनों में होना चाहिए उतनी कैपेबिलिटी। दिस इज एग्जैक्टली व्हाट एंटीनास डू, ये तो हम लोग को पहले से पता है, बट है टॉपिक तो यहाँ पर हम लोग पढ़ लिए। अब ये सब नहीं भी पढ़े हम लोग तो इसमें कोई वो नहीं है। दीज आर दी रेडिएशन पैटर्न ऑफ द आइसोट्रोपिक रेडिएटर। यहाँ पर एक्चुअली दिखाना चाहता जो हम लोग एक्चुअली एंटीनास होते हैं ना, सो एंटीनास का कुछ इफेक्ट्स होते हैं। ओके, और अच्छा आपने, मैं आपको एग्जांपल देखूंगा। आप लोगों ने कार के एंटीनास देखे? कार के एंटीना, अगर एंटीनास अगर आपने देखे होंगे, तो कार के एंटीनास जो होते हैं, तो उसको भी हम लोग जो है ना उसको भी, और जो आपके फिर दूसरे जो मतलब घर में जो एंटीनास लगे होते हैं, उसमें से कुछ टाइप के एंटीना जो है, जो थोड़ा आपके स्टैंडिंग ओवेशन जो देते हैं, वो एंटीनास जो होते हैं वो बेसिकली आपके डाइपोल, मतलब उसका जो कंस्ट्रक्शन है वो कुछ ऐसा होता है, और उसकी जो टोटल लेंथ होती है वो λ/2 होती है। तो ये जो छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन खाली याद रखो बस, हम लोग को इसमें ज्यादा डीप में जाना नहीं है, क्योंकि जितना डीप में जाएंगे तो एंटीना थियरी एक अलग से एक सब्जेक्ट है इलेक्ट्रॉनिक्स वालों को, तो हम लोग उतना ज्यादा डीप में जाएंगे नहीं। बट लेकिन फिर भी मैंने यहाँ मेंशन किया था, सो दैट इफ समवन वांट्स टू रेफर दे कैन रेफर। रियल एंटीनास ऑल एग्जिबिट डायरेक्टिव इफेक्ट। ओके, दैट इज द इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन इज नॉट द सेम इन ऑल द डायरेक्शन फ्रॉम द एंटीना। तो अलग अलग जगह से अलग अलग इसकी इंटेंसिटी निकलती है। द सिंपलेस्ट रियल एंटीना इज अ थिन सेंटर फेड डाइपोल, जैसे कि आप लोग यहाँ पर एग्जाम्पल इसमें देख रहे हैं। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज हर्ट्जियन डाइपोल। बेसिकली इसका ना आधा हिस्सा ऊपर आधा हिस्सा नीचे होता है। सो द टोटल साइज इज λ/2 फ्रॉम अपर टू लोअर, जितना भी होता है वो λ/2 होती है। ये आपको खाली 2-3 पॉइंट याद में रखो, ज्यादा आपको याद रखने की इसके बारे में जरूरत नहीं, क्वेश्चन आता भी नहीं है, कोई पूछता भी नहीं है, ठीक है? तो टोटल जो साइज होती है वो λ/2 होती है।
सो बेसिकली सिंपलेस्ट आपका जो रियल एंटीना है, जो कि थिन सेंटर फेड डाइपोल जिसको बोलते हैं, ऑल्सो कॉल्ड एज द हर्ट्जियन डाइपोल, और इसका जो अपर पार्ट होता है वो ऑब्वियसली इसका अगर आधा λ/2 को अगर आधा करेंगे तो इट बिकम्स λ/4. ओके, द डाइपोल कंसिस्ट ऑफ टू कोलिनियर कंडक्टर ऑफ इक्वल लेंथ, ऊपर इक्वल लेंथ, नीचे इक्वल लेंथ, सेपरेटेड बाय अ स्मॉल फीडिंग गैप. तो बीच में एक छोटा सा सेपरेशन रहेगा, तो ऊपर का पार्ट अलग, नीचे का पार्ट अलग. तो ये होता है रियल एंटीना उनके अकॉर्डिंगली. इसका अलग अलग व्यू है एक्चुअली, इसका अलग अलग व्यू है, साइड व्यू है, और मतलब एग्जैक्ट प्लेन है, ये एक्स वाई प्लेन, एग्जैक्ट प्लेन और एग्जैक्ट प्लेन अलग अलग है. ठीक है, तो इसके बारे में हम लोग ज्यादा जाएंगे नहीं. देखो यहाँ पर मैंने एक बार इस जगह मेंशन किया था, इफ माउंटेड ऑन द रूफ ऑफ कार द लेंथ ऑफ λ/4 is, if mounted on the roof of the car the length of λ/4 is efficient. This is known as the मार्कोनी एंटीना. तो जो आपका जो, हाँ, तो ये जो टाइप का एंटीना है ना, जो आपने अक्सर कार में लगा हुआ देखा, क्योंकि उसका अपर पार्ट ही आपको दिखता है, बाकी इसका लोअर पार्ट तो दिखता नहीं. सो दैट एंटीना इज कॉल्ड एज मार्कोनी एंटीना. तो इसके अलग अलग एंगल्स है बेसिकली. तो और हम लोग इसमें ज्यादा जाएंगे नहीं. दीज आर दी डायरेक्टेड एंटीना. तो यहाँ पर नाम दिया उसने डायरेक्टेड एंटीना. हम लोग उसके थियरी में इसके लिए नहीं घुस रहे हैं, क्योंकि अंदर घुसेंगे तो फिर उसको समझना पड़ेगा. इसके लिए ज्यादा हम लोग नहीं घुसते. डायरेक्टेड एंटीनास बेसिकली आर दी एंटीनास विच जैसा हमारा फोकस्ड एंटीना था, जो हमारा यूनिडायरेक्शनल एंटीना था, which transmit the signal in only one direction. So that is nothing but the directed antenna, which transmit the signal or the data in the directed direction only. If an antenna is positioned, example, in the valley of the buildings, an omnidirectional radiation pattern is not very useful. आपके बिल्डिंग्स है, एक, तीन, चार, पांच, छह बिल्डिंग्स है, और बिल्डिंग्स के बीच में आपने अगर एंटीना लगाया है, सो दैट एंटीना विल नॉट वर्क. सो ओके, थोड़ा सा प्रॉब्लम इसके लिए आपको आ सकता है, बिकॉज वी हैव मेनी बिल्डिंग्स अराउंड अस. ओके, एंड अगर ओमनी डायरेक्शनल पैटर्न अगर हम लोग यूज करते हैं, सो द पावर विल बी यूज इन ऑल द डायरेक्शन. आपका पावर फॉर एग्जाम्पल 100% है, तो 20%, 20%, 20%, 20%, 20%. तो 5 डायरेक्शन में मेरे एंटीना ने 20% पावर सेंड किया. तो क्यों ना ऐसा हो. अच्छा, जहां पे 4 साइड में बिल्डिंग थी, तो जिसकी वजह से एंटीना आपका लॉस्ट हो गया, सॉरी आपका सिग्नल लॉस्ट हो गया, तो फायदा कुछ नहीं हुआ. आपको भेजना इसी इसी साइड में है. तो क्यों ना फोकस्ड एंटीना यूज करके विल सेंड द कंप्लीट सिग्नल विद कंप्लीट पावर इन द वन डायरेक्शन ओनली. तो इट कैन कवर लार्जर डिस्टेंस ऑल्सो. ठीक है, तो अगर एक डायरेक्शन में अगर भेजते हैं, सो इट विल बी सेंट इन वन डायरेक्शन using the directed antenna. It is possible using the directed antenna which will transmit the signal in only one direction. तो यहाँ पर उसको हम लोग थोड़ा सा directed antenna भी बोलते हैं. Okay, so in this case directional antennas with certain fixed transmission and reception directions can be used. तो डायरेक्शन एंटीना फॉर एग्जांपल, यहाँ बिल्डिंग, यहाँ बिल्डिंग, पीछे बिल्डिंग, पीछे बिल्डिंग, सामने खाली जगह खाली, तो आपको एंटीना ऐसे फोकस करना है, and you have to use this kind of antenna, like you have to use the directed antenna for that purpose. So directed antenna will send the will send the signal to this direction, and your receiving signal will your receiving antenna will receive the signal with in this direction only. Okay, so these antennas are used which are called as directed antenna. तो है कुछ नहीं, एक बार आप लोग रीड करेंगे तो आप लोग भी खुद समझ जाएंगे. ठीक है, सो इट इज सेम एज व्हाट वी हैव लर्न इन द कंप्यूटर नेटवर्क. इट इज सेम एज द यूनी डायरेक्शनल एंटीनास. ओके, एंड ओमनी डायरेक्शनल तो आप लोग को पता है. वन मोर एंटीनास आर यूज. देखो अब यहाँ पर एक चीज नहीं है हमारे लिए. ठीक है, so one more antennas are used. These are called as sectorized antennas. Okay, if you remember one diagram मैं आपको बताना चाहूंगा. So in the cellular system, remember this diagram. In this particular diagram मैंने आपको बताया था कि the cell is sectorized into, the cell is again divided into number of section. यहाँ पर 3 सेक्शन में इसको डिवाइड किया है. ठीक है, and in this case, in this particular sub cell we are using sectorized antenna. देखिए यहाँ पर लिखा हुआ मेंशन. इसके लिए जब हम लोग ये पढ़ रहे थे तब आप लोगों को शायद समझ में ना आया हो, लेकिन अब शायद समझ में आया आपको. तो sectorized antennas are used in a small range. Okay, एक स्मॉल एरिया के अंदर यूज करो. फॉर एग्जाम्पल कारगर इज योर सेल. ठीक है, ये आपका जो सेल है कंप्लीट, कहाँ से बताओ, यहाँ से बताता हूँ. ठीक है,
तो दिस इज योर कंप्लीट खारघर, या फिर आपका ये है पनवेल। ठीक है, चलो पनवेल पकड़ते हैं, तो सर आप लोग भी बोलेंगे सर हमेशा खारघर की एग्जांपल लेते हैं। सो ये आपका जो है पनवेल है। ठीक है, सो व्हाट वी हैव डन, द कंप्लीट पनवेल is again in order to provide the efficient service to all the users, what we have done, we have divided the first region as the old पनवेल। अब साकिब खुश हो जाएगा। तो ये आपका हो गया फर्स्ट रीजन जो ओल्ड पनवेल हो गया, ये हमारा हो गया ओल्ड पनवेल। एक दीदी हम लोगों ने न्यू पनवेल को, ठीक है, और एक रीजन जो हम लोगों ने डिवाइड किए वो कर दिया आपका रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड और आसपास का जो एरिया है, तो उसको आई डोंट नो एग्जैक्ट डिवाइडेशन कैसे हो सकता है, बट मैंने ऐसी जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग, तो इट इज नियर बस डेपो। ठीक है, तो बस डेपो के आसपास के लिए तो मैंने 3 रीजन में डिवाइड कर दिया। ठीक है, तो द सेल was again divided into 3 section, 3 region, and अब इस पर्टिकुलर रीजन के अंदर, इस पर्टिकुलर रीजन के अंदर, इस पर्टिकुलर रीजन के अंदर अगर मुझे सर्विस प्रोवाइड करना है, इस पर्टिकुलर रीजन में अगर मुझे सर्विस प्रोवाइड करना है, देन आई कैन यूज सेक्टराइज एंटीनास, ओके, which will provide the services in that particular sector using the sectorized antennas only, okay। अच्छा, अगर हम लोग बेस स्टेशन यूज करेंगे, द बेस स्टेशन इज feasible फॉर द कंप्लीट सेल, ओके। ये आपका जो बेस स्टेशन है वो पूरे सेल के लिए, हम लोग को पूरा सेल को कवर नहीं करना है अभी, हम लोग एक पर्टिकुलर सेक्टर ही कवर करना है, एंड दैट पर्टिकुलर सेक्टर विल बी कवर्ड बाय these sectorized antennas only, which will provide the services in that particular sector only, will not go, their ranges will not go out that particular sector, will not disturb others, okay। सो इंटरफेरेंस अवॉइड करने के लिए आपने सेक्टराइजेशन की बात की थी। सो इन दैट पर्टिकुलर सेक्टर वी कैन मेक यूज ऑफ दी सेक्टराइज एंटीनास एंड वी कैन डू सो, ओके। तो इसके लिए इसको मैंने रोक के रखा था, चलो अभी हो गया। I hope you people are getting, not I'm not going into the depth of this particular antennas and all, but जितना हो रहा है मैं आपको थोड़ा सा मतलब जो भी जो भी नेसेसरी इंफॉर्मेशन है वो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। So these are sectorized antennas. A cell can be sectorized into, मैंने जैसा आपको बताया अभी, a cell can be sectorized, a cell can be sectorized into for example 3 or 6 sector। तो यहाँ पर in that case जो हम लोग ने अभी देखा, in that case we have divided the cell into 3 सेल में हम लोग ने डिवाइड किया था। ये आपका हेक्सागोन, इस हेक्सागोन को हम लोगों ने डिवाइड किया था, कैसा था बाबा ये, ऐसा ऐसा ना, ऐसा और ऐसा, हाँ। तो ये आपका कंप्लीट सेल है, ओके। सो दिस इज योर कंप्लीट सेल, बट अगेन आपने यहाँ पर एक बनाया सेक्टर नंबर 1, ये आपका बनाया सेक्टर नंबर 2, एंड दिस इज सेक्टर नंबर 3। एंड फॉर दिस पर्टिकुलर द पीपल्स हु आर लिविंग इन दिस सेक्टर, द पीपल्स हु आर लिविंग इन दिस सेक्टर विल गेट द सर्विसेज यूजिंग सेक्टराइज एंटीना। तो हमारे पास में एक सेक्टराइज एंटीना रहेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे सेक्टराइज एंटीनास, ओके। यहाँ पर भी हमारे पास बहुत सारे यूजर्स हैं, ठीक है। तो इनको सर्विस प्रोवाइड करने के लिए हमारे पास अगेन एक सेक्टराइज एंटीना नंबर 1, दिस इज नंबर 2, okay। So like that these sectorized antennas will work. I hope you people are understanding about the sectorized antennas, okay। Coming to the next one, that is signal propagation, and I don't think ये आपको explain करने की जरूरत है। 11:51, okay, टाइम हो गया हमारा, okay, thank you so much। यहाँ तक हम लोग रुकते हैं। From in next lecture we will start with the signal propagation, how the signal is propagated, how the signal is transmitted। सिग्नल ट्रांसमिट होता है तो कहाँ तक होता है, 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, उसकी रेंजेस क्या होती है, अलग अलग सिग्नल की अलग अलग रेंज होती है। सो दोस रेंजेस कैन बी कैटेगराइज इनटू डिफरेंट रेंज, ओके, या डिफरेंट जिसको बोलेंगे हम लोग जो उसकी रेंजेस है। सो दैट इज नथिंग बट द ट्रांसमिशन रेंज, one is the detection range and one is the interference range, okay। So we'll learn about that tomorrow inshallah, okay। So till then we'll stop right now. Let me stop the recording first. Anyone having any doubt, please let me